اور ایسے ان کے مقامات واضح کر دیے، اور جن کے بارے میں یہ کہا ہے حذیفہ ابن الیمان سے کہ وہ منافق ہیں، اور جنہوں نے اپنے نفاق کا احد کے غزوے کے موقع پر کھلم کھلا اظہار کیا، اور جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے۔ بعد کے جو ملا مولوی ہیں جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی۔ اب یہ جملہ برا نہیں لگنا چاہیے، وہ خود کہتے ہیں اور بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے 2 خزانے میں نے لیے، ایک تو تمہیں بتا دیا، ایک نہیں بتایا، اس لیے کہ اگر میں اسے بتا دوں گا تو میری گردن کاٹ دیں گے۔ کون کاٹ دے گا؟ وہ کس دور میں تھے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت گردن کاٹنے کی طاقت صرف اور صرف معاویہ کے پاس تھی، کیونکہ وہ انہی کے دور میں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک ظالم حکومت تھی جس کا خوف تھا، جو امراء تھے وہ ظالم۔ سامعین مکرم، آپ نے اس شخص کا ویڈیو کلپ سماعت فرمایا۔ یہ شخص انڈیا کا مشہور و معروف سلمان ندوی ہے، جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تنقید کا نشانہ بنایا، اپنے تبرے کے تیر چلائے اور اپنے اندر کی رافضیت کو نمایاں کیا۔ اب اس رافضی اور تبرعی کے متعلق مولانا سجاد نعمانی صاحب جو دیوبندی عالم ہیں، ان کا بیان سماعت فرمائیں۔ اچھا مولانا، ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی، آپ مولانا سلمان ندوی صاحب کے ساتھ دکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ دونوں حضرت میں اتحاد ہو گیا ہے، سمجھوتا ہو گیا ہے، بڑے خوشگوار انداز میں آپ سیمینار کانفرنس میں بھی ہیں اور شاید کسی مسجد میں یا کسی پروگرام میں بھی نظر آ رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ جو تصویریں وائرل کی جا رہی ہے، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا کہنے سے بھی اس پر کر رہے ہیں، ان حضرات سے پوچھیے کہ یہ اختلاف کب ہوا تھا ہم دونوں میں؟ یہ 2 اسٹیٹ کا مسئلہ ہمارے درمیان کب آیا تھا؟ مجھے تو یاد نہیں۔ دیکھو، بہت ہی ناسمجھی کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ ہم دونوں بچپن کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ساتھی کھیلے کودے، ساتھی پلے بڑھے، ساتھی تقریباً پڑھے۔ اب بالکل ممکن ہے کہ ان کو میری کسی رائے سے اختلاف ہو اور مجھے ان کے کسی رائے سے اختلاف ہو۔ میں اختلاف کا اظہار کروں گا اپنے انداز سے، وہ اختلاف کا اظہار کریں گے اپنے حسینی انداز سے، جس کے لیے وہ بہت مشہور ہے۔ لیکن میری دوستی تو ختم نہیں ہو سکتی۔ میرا مزاج الحمدللہ بالکل یہ نہیں ہے، میں کسی سے کینہ نہیں پالتا کسی کو، میں اپنی تعلقات کو میں نے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں میں پہلے دن سے آج تک ہم اس سب واقعات کے باوجود قطعاً کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ آپ اگر اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ انہوں نے پرسنل بورڈ کی میٹنگ میں میرے اسی کی طرف اشارہ لوگوں نے دیکھا، ہم لوگوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا۔ حیرت ہوگی کہ اس کے بعد جب میں لکھنؤ گیا تو میں نے ان کو اطلاع کی کہ میں لکھنؤ آیا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن میری طبیعت کافی خراب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں آؤ گے، میں آتا ہوں۔ اور پھر وہ آئے اسی تلخی کے چند دن کے بعد۔ ہاں، وہ تصویریں بھی سامنے آئی تھی، ملاقات ہوئی تھی، ہر جگہ ہم لوگ ملتے رہتے ہیں، کبھی بھی ملاقات ہوتی۔ اب دوحہ میں جب میرے پہنچنے کی ان کو خبر ملی تو وہ خود آئے میرے پاس۔ یہ بالکل دیکھیے، میرے دل میں ایک اور خیال رہتا ہے کہ یہ حضرات اہل بیت میں سے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ خانوادہ نبوت کے افراد کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپنی والدہ کو، اپنے گھر والوں کو اس کی تاکید کرتے ہوئے دیکھا، اور حضرت والد صاحب اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کے درمیان ایک مثالی محبت تھی، مثالی۔ تو میری دلی تمنا ہے کہ ہمارے دونوں خاندانوں کے درمیان، ان کی نسلوں کے درمیان وہ تعلقات کسی حد تک باقی رہیں۔ لوگ اپنے اپنے طرز پر کام کریں، کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ ہر ایک اپنے اپنے طریقے کے مطابق کام کرتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا راستہ زیادہ بہتر ہے۔ میں مولانا سلمان صاحب کا میرے دل میں احترام اور محبت میں رتی برابر کمی نہیں ہوئی، اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بالکل۔ اور بہت سی ان کی رائے سے مجھے اختلاف ہے، مجھے اتفاق نہیں ہے، اور میری بھی ہو سکتا ہے کسی رائے سے ان کو اختلاف ہو، تو ایک دوسرے کو اختلاف کا موقع دینا چاہیے۔ یہ ہمارا جو کلچر ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کاربن کاپی، ایک دوسرے کو اپنی کاربن کاپی بنانا چاہتے ہیں۔ صدیق اکبر کا مزاج کچھ اور تھا، سیدنا عمر کا مزاج کچھ اور تھا۔ بالکل۔ سامعین، آپ نے سنا، پہلے شخص وہ ہیں جس نے جماعت محمد پر تنقید کے تیر چلائے، دوسرے شخص وہ ہیں جب ان سے اس کی محبت کے متعلق سوال کیا گیا تو جواب میں محبت پر اظہار تشکر کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ساتھ تعلق اور واسطہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ سید ہیں، یہ خانوادہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ہم نے قرآن و سنت کو دیکھنا ہے کہ قرآن مجید نے معیار محبت کیا دیا ہے اور احادیث مبارکہ میں معیار محبت کیا ملتا ہے، کیونکہ ایک مومن یا تو قرآن کی اتباع کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع کرتا ہے، اور
मोमिन उनकी इत्तिबा करता है जो कुरान और सुन्नत की इत्तिबा का हुक्म देते हैं, राह दिखाते हैं। आपके सामने कुरान मजीद है, सूरह मुजादला है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पे फरमाया कि मेयार मोहब्बत ये है, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं वो उनसे कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला से अदावत व दुश्मनी रखते हों, रसूलुल्लाह से अदावत व दुश्मनी रखते हों, फिर चाहे वो उनके आबा क्यों ना हो, अबना क्यों ना हो, इख्वान क्यों ना हो, चाहे उनके अजीज़ व अकारिब क्यों ना हो, रिश्तेदार दोस्त व अहबाब क्यों ना हो। और यही वो अशख़ास हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को लिख दिया है, और यही वो अशख़ास हैं जो अल्लाह ताला से ताईद याफ्ता हैं। यही वो अशख़ास हैं कि जो अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत अता करदा हैं। अल्लाह ताला का लश्कर हैं और अल्लाह का लश्कर ही कामयाब है। अब अहादीस मुबारक को देखना है कि अहादीस में मेयार मोहब्बत क्या मिलता है। अन अबी उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मनअ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान, कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करता है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए किसी से बुग़्ज़ रखता है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए किसी पे ख़र्च करता है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए ही किसी से अपनी अशिया को, अपने माल को रोके रखता है, तो वही कामिल मोमिन है। अब कुरान और अहादीस मुबारका से मेयार ईमान यही मिलता है कि एक मोमिन उससे मोहब्बत करता है जो अल्लाह और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हों, और उनसे नफ़रत करता है जो अल्लाह और उसके रसूल से नफ़रत करते हों। अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के मुतालिक रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि इनकी मोहब्बत क्या है और इनसे मोहब्बत क्यों की जाए। ख़ुद रसूलुल्लाह से पूछते हैं। रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अमन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़दहुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़दहुम, कि सहाबा से मोहब्बत करने वाला मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करता है, और सहाबा से नफ़रत करने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला मुझ मोहम्मद से नफ़रत और बुग़्ज़ की वजह से बुग़्ज़ रखता है। अब कुरान सुन्नत से ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान से मेयार मोहब्बत निखर के सामने आया, और सहाबाए किराम की मोहब्बत और सहाबाए किराम के बुग़्ज़ की वजह का ज़िक्र भी ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिसान नबुव्वत से आपके सामने मैंने रख दिया। अब सलमान नदवी साहिब अपनी तहकीक की बुनियाद पर, वो तहकीक ही कहते हैं ना, तहकीक की बुनियाद पर सहाबाए किराम पर तबर्रे करता है, सहाबाए किराम को तान का निशाना बनाता है, तनकीद के तीर चलाता है। और मौलाना सज्जाद साहिब को इन बातों का इल्म भी है, क्योंकि इनके क्लिप से वाज़े हो रहा है, वो इसे राय का इख्तिलाफ फरमा रहे हैं। तो अब देखना यह है, क्या मोमिन उनसे मोहब्बत कर सकता है जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से नफ़रत करता हो, अदावत रखता हो, तनकीद का निशाना बनाता हो? क्या मोमिन कभी उसकी दोस्ती और ताल्लुक़ पर शुक्र अदा कर सकता है? क्या इस वजह से कि वो अगला सैयद है? तो अब सज्जाद साहब आपसे सवाल है, अगर इनके फ़कत सैयद होने की वजह से आप इनसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को कहते हैं, अहले बैत से इसका ताल्लुक़ है, तो क्या सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर तबर्रा करता रहे और अहले बैत से मोहब्बत का दम भरता रहे, तो क्या उस शख्स से मोहब्बत की जा सकती है? अगर हाँ की जा सकती है, तो फिर आप कुलैनी को क्या कसूर देंगे, आप खुमैनी को क्या कसूर देंगे, बाकिर मजलसी को क्या कहेंगे, आप दीगर राफ़ज़ियों को क्या कहेंगे? वहाँ जब आप दिफ़ाए सहाबा की बात करेंगे, सहाबाए किराम की इज़्ज़त और नामूस की बात करेंगे, या जो बात करते हैं उनसे अवाम ये नहीं पूछेगी कि अगर सलमान नदवी गुस्ताखी करे, तौहीन करे, तो उनके ताल्लुक़ पर तुम शुक्र मनाओ, उनके ताल्लुक़ को सराहो और उनके ताल्लुक़ पर खुशी का इजहार करो, क्योंकि वो सैयद है, वो आले रसूल है। और खुमैनी बके, मजलसी बके, दीगर राफ़ज़ी अगर तबर्रे करें, तो फिर उसके मुताल्लिक़ तुम कहो ये सहाबा की इज़्ज़त और नामूस का मसला है। तो ये दो रंगी क्यों, ये 10 रंगी क्यों? 10 रंगी छोड़, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा।
सज्जाद नोमानी साहब, अगर आप समझते हैं कि आपको देवबंदी मकतबा फ़िक्र की तरफ से, अहल सुन्नत मकतबा फ़िक्र की तरफ से इज़्ज़त मिलती है, आप बहुत बड़े पीर हैं, तो आपकी भूल है। सहाबाए किराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उम्मत के हकीकी पीर हैं, हकीकी रहनुमा हैं, और उनकी मोहब्बत की वजह से ही तो हम आपसे मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत की वजह से तो हम अपने उलमा की इज़्ज़त करते हैं। इज़्ज़त का हकदार वही है जो सहाबाए किराम से मोहब्बत करता है, इज़्ज़त का हकदार वही है जो सहाबा की ग़ुलामी का दम भरता है। जो सहाबा की ग़ुलामी का दम नहीं भरता, उन पे तबर्रे करता है, वो भी इज़्ज़त का हकदार नहीं है। और जो उसकी इज़्ज़त करे, उसकी मोहब्बत पर शुक्रिया अदा करे, तो वो भी मोहब्बत या इज़्ज़त का हकदार कभी नहीं है। आप अपने इस बयान से रुजू करें, क्योंकि कुरान मजीद वाज़े कह रहा है कि वो उनसे मोहब्बत नहीं कर सकते जो मोमिन हैं, अल्लाह और उसके रसूल के जो दुश्मनी रखते हों। तो ये साफ दुश्मनी है सहाबाए किराम की रसूलुल्लाह की वजह से, क्योंकि खुद हुजूर ने फरमा दिया है। तो लिहाजा अगर आप अपने इस बयान से रुजू करते हैं ठीक है, अगर आप रुजू नहीं करते तो ये आपकी भूल होगी कि अहल सुन्नत मकतबा फ़िक्र आपकी इज़्ज़त करेंगे या आपको अपना बड़ा मानेंगे या वो आपको सुन्नी समझेंगे। आपको भी सैयद सलमान नदवी साहब के साथ जोड़ा जाएगा। हाँ, जो अंधे हों, जो आपकी मोहब्बत को तरजीह देते हों सहाबा किराम की मोहब्बत पे, उनकी बात अलग है। ऐसे रसूलुल्लाह के ज़माने में भी पाए गए जिन्होंने अपने बुतों की मोहब्बत को रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर तरजीह दी, रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा। और हर ज़माने के अंदर ऐसे अशख़ास हैं, अगर आपको ऐसे मिल जाते हैं तो ये आपको मुबारक हो। हम आपकी इज़्ज़त तब करेंगे जब आप सहाबा की इज़्ज़त करेंगे और हर उस शख्स से बरात का इजहार करेंगे जो सहाबा किराम को तनकीद का निशाना बनाता है, तबर्रे करता है, सहाबा किराम पे एतराज़ करता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी इज़्ज़त के हकदार नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान और सुन्नत ने मेयार मोहब्बत वाज़े कर दिया है। मोमिन अपनी ज़ात की वजह से, अपने ताल्लुक़ की वजह से और अपने मफाद की वजह से ना मोहब्बत करता है ना नफ़रत रखता है। मोमिन की तो मोहब्बत भी रसूलुल्लाह और अल्लाह ताला की ज़ात की वजह से है और नफ़रत भी अल्लाह ताला की ज़ात की वजह से है। यह तो कुरान और सुन्नत बबांगे दोहल फरमा रहे हैं। लिहाजा अगर आप अपने ईमान की खैर चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी इज़्ज़त की जाए और अगर आप चाहते हैं कि आपको सलमान नदवी के इन गुस्ताखियों के साथ ना जोड़ा जाए, तो इनसे रुजू कीजिए और अपने इस बयान पर बयान दीजिए। नंबर 2, आपने कहा कि राय का इख्तलाफ है, उनका मेरी राय से इख्तलाफ हो सकता है, मेरा उनकी राय से इख्तलाफ है। तो याद रखें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की अदालत पर उम्मत का इजमा है। अहल सुन्नत का जब इजमा हो गया तो फिर उसमें राय कहाँ आ गई, उसमें ज़ाती तहकीक कहाँ आ गई। पूरी उम्मत का इजमा है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन तनकीद से बालातर हैं, क्योंकि सहाबी अमल से बना ही नहीं है। सहाबी बना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की वजह से, सहाबी बना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोयत की वजह से और मैयत की वजह से है। लिहाजा आप इसको इख्तिलाफ राय कैसे कह सकते हैं? अगर इख्तिलाफ राय है तो फिर जो दूसरे तनकीद करते हैं, तबर्रे करते हैं, फिर उनके मुतालिक हमारे अकाबिरीन ने क्यों किताबें लिखी, उनका रद्द आज तक क्यों जारी है, क्यों उलमा को कुर्बान किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। लिहाजा या तो फिर अपने बयान से रुजू कीजिए, अगर आप रुजू नहीं करते तो फिर कभी भी ये उम्मीद मत रखिए कि सहाबा से मोहब्बत करने वाले आपकी इज़्ज़त करेंगे।